Hello students, welcome back. Today as you can see on your screen we are going to discuss with chapter number 4. That should be the last topic for our first semester for foundation course children. The name of the topic is the Indian Constitution. Now children, many times we have heard about the constitution. It is written by whom? India's constitution is one of the biggest and the lengthiest constitution in the world with a lot of words written into it. Now, before we begin with the topic, children, let us acquaint ourselves with or take a synopsis of what the topic is all about. So, first of all, children, we are going to analyze the entire preamble to the Constitution. Acha, फिर we will be studying the structure of the Constitution. एक बहुत important question, that is our fundamental duties. And then there are some constitutional words, children, that we need to know. The first among them, children, is known as tolerance. Then we also have peace and communal harmony. And lastly, children, we will be discussing the basic features of the Indian Constitution. So this is the exact topic that we are having. So let's begin by understanding the introduction or the first page of the Constitution, which is actually known as preamble to the Constitution. Just like when we open any book, children, तो हम लोग को पता है कि वहाँ पे एक प्रीफेस करके लिखा रहता है, प्रस्तावना करके बोलते हैं उसको, जो आपको एक bird's eye view देगा what the book is all about. Okay, so what exactly is preamble? Preamble का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन. That means children, like when the framers of the constitution, जब वो लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे तो उनका माइंडसेट क्या था, कौन से थॉट्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, and what are the different ideas that they had in their minds. So can we say, children, that constitution is nothing but it is the soul of the preamble is the soul of the constitution. और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियोलॉजीज को वहां पे इंक्लूड किया गया है, उसको आप यहाँ पे मतलब एक इंट्रोडक्शन मिलता है. ओके, ये प्रीएम्बल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट लाइक अभी हर एक स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखेगा कि प्लेज के साथ में उन्होंने अभी प्रीएम्बल को भी इंक्लूड किया हुआ है, बट वी माइट हैव नॉट नोटिस्ड इट आउट. So what exactly are these words? They are very catchy, children, and they give in-depth meaning of the constitution. How does it begin? We the people of India. Okay, so here, children, that this constitution is meant for the people, and we ourselves known as Indians, and forget about all the states and religions. Now we solemnly resolve to constitute India into, children, just focus on these words, a sovereign, a socialist, secular, democratic republic. ये सब वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे हम लोग. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हमारे देश के सभी लोगों को हम लोग कौन सी चीजों को प्रॉमिस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू गिव पीपल जस्टिस. नाउ व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस? तो बोलते सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो सपोज एग्जांपल सोशल, सामाजिक बोलते हैं उसको. ओके, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक होता है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक टर्म्स, और फिर राजकीय या फिर पॉलिटिकल. ये जस्टिस हो गया. The second word highlighted, children, is what's known as equality. Before that, liberty. Liberty, children, liberty का मतलब होता है freedom. So liberty of thought, you can think whatever you want, express, believe, faith and worship. All these things are bestowed upon all the citizens. Then we also require equality. Equality in status and opportunity. हर एक इंसान को equal status मिलना चाहिए, equal opportunity मिलना चाहिए. एंड प्रोमोट अमंग देम ऑल. लोगों के बीच में आप क्या प्रोमोट करोगे? फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, चिल्ड्रन, ब्रदरहुड. और फ्रेटर्निटी के ऊपर हमारे देश का इंटेग्रिटी डिपेंड करता है, हमारे देश का यूनिटी डिपेंड करेगा. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट. हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें? अडॉप्ट करें, उसको इनैक्ट करेंगे. एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम लोग हमारे देश को खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहे आज. अच्छा, 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट बोलते हैं उसको,
तो उसमें दो वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है चिल्ड्रन, एक होता है सोशलिस्ट, देन वी हैव गॉट सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, नो स्टेट रिलीजन। अच्छा, सोशलिस्ट मतलब जिसका मेन एम होगा सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, देन वी आल्सो गॉट इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकात्मता बोलते हैं। तो ये तीन वर्ड्स को 1949 में इंक्लूड किया गया था। ओके, देन अभी ये जो प्रीएम्बल हमने पढ़ा, व्हाट डज इट एग्जैक्टली इंप्लाई, क्योंकि वो कैची वर्ड्स में एक डेफिनेशन के जरिए जैसे दिया हुआ है, सो अ कॉमन पर्सन वुड नॉट एट फर्स्ट साइट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रीएम्बल मीन्स। अच्छा, तो प्रीएम्बल इंप्लाइज दैट कि इंडिया का ये जो अपना स्टेट है बच्चों लोग, इट्स अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मींस ऑल द पीपल हु मे इलेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, उन्होंने मिलके बनाया हुआ है। अच्छा, फिर हमारे स्टेट्स जो है बच्चों लोग, उनके सामने क्या गोल्स है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, द कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। सॉवरेनिटी मीन्स द authority of running the government will lie with the people. The people are the ones who are the apex authority in any particular country, which is a sovereign nation. और फिर then we talk about the meaning of the preamble. अच्छा, जैसे हर एक वर्ड्स को उन्होंने ब्रेक डाउन किया है। जैसे हम लोग बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, नेता लोगों ने बनाया ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते वहां पे। और द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली प्रोक्लेम्स दैट वी वांट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, अ सोशलिस्ट एंड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो दीज वर्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, तो इट मींस चलो आज इंडिया आजाद है अपने डिसीजंस खुद ही लेने के लिए। ऐसे देशों को हम लोग क्या बुलाते हैं? sovereign. It's another word for independent, we can say. फिर आता है वर्ड चिल्ड्रन सोशलिस्ट। What does that actually mean for us? हमारे लिए सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट जिसका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्टेट करके बोलते हैं उसको। सोशलिस्टिक पैटर्न का सोसाइटी हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। So it is the responsibility of the government and the state to take care of the people through various means and welfare schemes. फिर सेक्युलर आता है। सेक्युलर का मतलब बच्चों लोग होता है सर्वधर्म समभाव। 42nd अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब होता है कि the government is going to protect all the religions, और गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं कर सकती एज ए स्टेट रिलीजन। आज बच्चों लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या है, आपके राइट्स क्या होते हैं, आपके ड्यूटीज क्या होते हैं। ओके, नाउ इट मींस ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। पर्सनल प्रैक्टिस के लिए हम लोग उनको इक्वल रखते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हम लोग को दिया हुआ है चिल्ड्रन, फ्रॉम आर्टिकल 25 to 29 टॉक्स अबाउट दी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, वन मोर थिंग चिल्ड्रन हियर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट is the democratic word. Acha, this word actually stands for something what is known as political. Acha, then we also got economic democracy, social democracy होता है। नैरो सेंस में देखने के लिए जाएंगे तो इसका मतलब होता है the representatives of the people are going to run the government. लोगों के जो representatives होते हैं वो गवर्नमेंट चलाएंगे। ओके, then children word आता है फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब देश का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको लोग इलेक्ट करते हैं, तो उसको रिपब्लिक बोला जाता है। देन वी गॉट 3 different types of justice. We got what is known as a political justice, economic justice children, and then the third one was what is known as social justice. अच्छा, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? वंस यू बिकम एन एडल्ट, जैसे आप 18 साल के होते तो आपको हक मिलता है चलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। ओके, अनदर थिंग कि इट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजंस, और इट्स लाइक फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी जो होते हैं उनको बचाने की बात आती है। अच्छा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है जब आप कोई पावर को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब किसी इलेक्शन में खड़े रहना चाहते हो।
हाँ, so no one can be deprived from acquiring power. That means political justice. Economic justice का मतलब होता है कि removal of poverty. तो हर एक इंसान को उतना अपॉर्चुनिटी तो मिलना चाहिए that he will be able to earn his daily bread and satisfy the basic needs. So almost like for example कि सबके लिए सफिशिएंट, मतलब सबके लिए चीजें सफिशिएंट होनी चाहिए, भले कुछ लोगों को लग्जरी ना मिले तो चलेगा. And then children, we have got social justice. We actually hope for what is known as a welfare state. अच्छा, so we actually want to set up a society where there is equal status for all. सबके लिए equality रहेगा वहां पे. That's the aim that we keep in front of ourselves. And then children, we also talk about liberty. Liberty means freedom. अच्छा, इसका मतलब होता है कि लाइक हर एक इंसान को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए. मतलब लाइक उसको जो सोचना है, उसको जो चीजों में बिलीव करना है, उसको जो चीजें एक्सप्रेस करनी है, उसको किसके ऊपर फेथ रखना है, क्या वर्शिप करेगा. एंड थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. तो 19 to 22 में हम लोगों को बच्चों लोग सब इंडिविजुअल फ्रीडम्स दिए गए हैं. ओके, देन चिल्ड्रन वी गॉट इक्वालिटी. इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. आर्टिकल नंबर 14 to 18 में जाता है. देन चिल्ड्रन फ्रेटर्निटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इट्स ब्रदरहुड, भाईचारा बोलते हैं उसको. स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. अच्छा, अभी इंडिया जैसे देश में आप सबको पता है कास्ट और रिलीजन को लेके बहुत सारे डिसरप्टिव फोर्सेस होते हैं, सब पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं. सो अगर हम लोगों को डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है, इफ यू वांट टू दैट डेमोक्रेसी बी टू सक्सेसफुल, देन वी नीड यूनिटी अमंग अस. एंड लास्टली चिल्ड्रन, वी आल्सो हैव द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. डिग्निटी का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे स्टेटस की बात करते हैं हम लोग, आत्मसम्मान की बात करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है. दैट मीन्स एवरी पर्सन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन. हाँ, तो ये सब चीजों के लिए बच्चों लोग गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Children, that was the entire thing about the introduction of the constitution, which is known as preamble. Now children, we come across what exactly the structure of the constitution. The structure में as you can see children, 22 different parts are there, 461 articles लिखे गए, 12 schedules है and 118 amendments. And उसमें 2 appendix होते हैं, appendix, which is actually at the end children, references which are made to some important words that you might not understand. अच्छा, क्या क्या parts होते देखते हैं यहाँ पे. So 22 parts है children. So part 1, union and its territory. Okay, मतलब अपने देश के मैप की बात होती है. Second part children deals with the citizenship. अच्छा, फिर पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मूलभूत अधिकार जो होते हो. फिर फोर्थ वाले में चिल्ड्रन गवर्नमेंट कैसे चलाने का उसके लिए होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वहां पे लोगों की ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया गया है. पार्ट 5 चिल्ड्रन दैट इज रिलेटेड टू द यूनियन, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स. फिर स्टेट्स के बारे में बात करने का. अच्छा, पार्ट 7 is talking about states in the part B of the first schedule, which is repelled from the constitution. फिर पार्ट 8 जो है चिल्ड्रन, इट इज टॉकिंग अबाउट द यूनियन टेरिटरीज. जैसे स्टेट्स है, सेंटर होता है, वैसे यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं. 9th वाला चिल्ड्रन पूरा पंचायती सिस्टम के बारे में बात करता है. 10th वाले पार्ट में हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससी एंड एसटी. फिर पार्ट नंबर 11 चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स. Part 12, finance, property, contracts, and suits. These are cases like na. Part 13, children, trade, commerce within the territory of India, मतलब domestic trade. Part 14, services under the union, states and tribunals. Part 15 है children, talking about the elections. Part 16 में special provisions related to certain classes. फिर आता है part number 17, जहाँ पे आप languages की बात करते हो. Part number 18, इमरजेंसी के टाइम पे आपातकाल आता है चलो, तो वहां पे क्या प्रोविजंस होते हैं उसकी बात. 19 में चिल्ड्रन मिसलेनियस अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड अबाउ. पार्ट नंबर 20 चिल्ड्रन टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब चेंजेस. 21 चिल्ड्रन टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस. और पार्ट नंबर 22 शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड द रिपील्स दैट वी हैव चिल्ड्रन. ये सब पार्ट्स है.
अभी कभी एक आध बार आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइक हाँ इलेक्शंस कौन से पार्ट में है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्शंस आर डिस्कस्ड इन पार्ट नंबर 15। या फिर अगर आपको बोला जाएगा कि मिसलिनियस का पार्ट कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक इट्स पार्ट नंबर 19। अच्छा, ये पार्ट्स हो गए। फिर आता है कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर द स्केड्यूल्स दैट वी हैव चिल्ड्रन। तो स्केड्यूल्स में फर्स्ट स्केड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक आता है। It lists the states and union territories of India and like any other changes to their borders and laws to make that change. तो कितने स्टेट्स है, कितने स्टेट्स को मिला के इंडिया बनता है, कौन से स्टेट का बॉर्डर कितना आएगा, उसमें कुछ बदलाव वगैरह करने हैं तो। फिर सेकेंड स्केड्यूल में चिल्ड्रन वी गॉट लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स, दे गिवन एन एंटायर लिस्ट, यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर। अच्छा, तो सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई जज है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब लोगों का जो सैलरीज होता है, प्लस गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सैलरीज को लेके बात होती है। थर्ड स्केड्यूल में चिल्ड्रन इट्स लाइक रिगार्डिंग द ओथ ऑफ ऑफिसर्स फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड जजेस, जो शपथ ली जाती है ना, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है इन द थर्ड स्केड्यूल। देन चिल्ड्रन द फोर्थ स्केड्यूल, राज्यसभा में सीट्स को किस तरीके से अलॉट किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। Fifth schedule, it actually talks about scheduled areas and scheduled tribes. ये देखो यहाँ पे we are talking about scheduled areas and scheduled tribes. Fifth schedule. Sixth schedule, children, we are actually talking about आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वहां पे जो ट्राइबल एरियाज है उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है वो लिखा हुआ है। फिर आता है चिल्ड्रन सेवेंथ स्केड्यूल। सेवेंथ स्केड्यूल में चिल्ड्रन वी गॉट द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रन इफ यू रिमेंबर, कभी हमने सिविक्स में पढ़ा था कि लाइक ऑल दोज एरिया जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना सकती है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसको, राइट। अच्छा, वैसे एरिया जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं तो उसको स्टेट लिस्ट बोल सकते हैं। देयर आर सर्टेन एरिया चिल्ड्रन जहां पे बोथ द गवर्नमेंट्स आर अलाउड टू पास द लॉज, तो उसको हमने कॉन्करेंट लिस्ट का नाम दिया था। एंड देन चिल्ड्रन वी हैव द एट्थ स्केड्यूल, जहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। नाइन्थ स्केड्यूल इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो कोई केसेस होते हैं, कोई पनिशमेंट दी जाती है चलो, तो वहां पे रिव्यू जो होते हैं उसके लिए। 10th schedule children, it is actually talking about anti-defection provisions for members of parliament and members of state legislature. So just like the powers that they actually enjoy, the provisions that are made for them. फिर 11th schedule children is talking about the पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट जो हमने पढ़े थे ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। The 12th schedule is talking about the urban governments, municipal corporation, municipal council and nagar parishad or nagar panchayat, that is being discussed in schedule number 12th. अच्छा, अभी सवाल आता है कि कितनी बार हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। सो मोस्टली वी आर अवेयर constitution children is not rigid, it's flexible. That means whenever as the time changes certain things they become obsolete and I think you need to make certain changes. तो इसलिए हमने एक प्रोविजन रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है। तो देयर इज अ वेरिएशन, एडिशन या फिर कैंसिलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए वर्ड आता है अमेंडमेंट। आज तक 118 चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज लाइक टिल 2014। अभी रिसेंटली भी आपने देखा रहेगा आर्टिकल नंबर 377 को, कश्मीर को लेके हमने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे ना। यस, so part number 20 talks about the amendments to the constitution. अच्छा, article number 368 specifies the power of parliament to amend the constitution. तो पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और उनके जो अधिकार होते हैं वो। अच्छा, then we have the appendix. अच्छा, appendix 1, the constitution. I think we have two appendices here, children. The first appendix is application to Jammu and Kashmir, order number 1954, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को आप सबको पता है स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इंडिया में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वहां पे हम लोग लिख देते कि एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Then children, we have got the second appendix. There is restatement with reference to the present text of the constitution of the exceptions, modifications,
subject to which the constitution applies to the state of Jammu and Kashmir. So मुझे लगता है दोनों भी appendices are meant for Jammu and Kashmir. Okay. Now a very important question, children, wherein we are going to talk about what are the different fundamental duties of Indian citizens. हम लोग हमेशा हक की बात करते हैं, लेकिन फिर हक के साथ में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ये ड्यूटीज को थोड़ा बाहर करके रखना है आपको, और कम से कम अपने लाइफ में इसको हम लोग याद रखते हैं कि लाइक व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. So article number 51, children, remember, very important children, article number 51 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को साइट करता है. अच्छा, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने संविधान का हम लोग क्या रिस्पेक्ट करें, उसके आइडियल्स, मतलब उसका आइडियोलॉजी जो है, उसके इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बच्चों, वेदर इट्स लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सबको रिस्पेक्ट करें. नेशनल फ्लैग यानी अपना जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, या फिर अपना जो राष्ट्रीय लाइक वी हैव द नेशनल एंथम, हाँ, तो ये सब चीजों को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे. इसीलिए फॉर एग्जांपल के लाइक वी रिक्वायर टू सल्यूट अ फ्लैग, या फिर व्हेनेवर दे सिंग दैट नेशनल एंथम वी आर सपोज्ड टू स्टैंड अप. अच्छा, सेकेंडली वी आर गोइंग टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल टू फ्रीडम. हमारी जो आजादी की लड़ाई हुई थी, वहां पे जो नोबल आइडियाज थे जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान दे दी, वो सब लोगों को फॉलो करने हैं, उनको चेरिश करना है, मतलब अपने लाइफ में इम्बाइब करना है उनको. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, हमारे देश का जो आजादी है और इसकी जो एकात्मता है, उसको हम लोग क्या करें चिल्ड्रन? We will be talking about, will uphold and protect that sovereignty and integrity. Then children, one more thing, to defend the country and to render national services when called upon to do so. See children, the country becomes very important for us. Now we are supposed to sacrifice every small thing, and whenever we need to make any bigger sacrifice for the country, we will not refrain from doing so. तो हमारा बड़ा सा बड़ा सैक्रिफाइस जो होगा वो किसके लिए होगा बताओ? देश के लिए होगा. और कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो लोग मिलिट्री में कंपलसरी कॉन्स्क्रिप्शन होता है, मतलब हर एक फैमिली में से किसी को भर्ती कराया जाता है जब देश को जरूरत पड़ेगी. ओके, देन चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल. और ये सब रिलीजन्स के आगे जाके, लैंग्वेजेस के भी आगे जाके, रीजन्स, एंड वी हैव द सेक्शनल डाइवर्सिटीज. ओके, एंड कोई भी प्रैक्टिस जो वुमेन को अंडरमाइन करता है, फिर विच इज डेरोगेटरी टू वुमेन, वी आर गोइंग टू रिनाउंस ऑल सच प्रैक्टिसेस एंड रिस्पेक्ट एंड गिव देम प्रॉपर स्टेटस. वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिजर्व एंड वैल्यू द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर. हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, चलो हमारी जो संस्कृति है, उसको हम लोग वैल्यू करेंगे, उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. अच्छा, देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, जैसे कि चिल्ड्रन नेचर को भी ध्यान रखना है, फॉरेस्ट होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं. देन वी आल्सो हैव गॉट दी वाइल्ड लाइफ, और हर एक जो जीवित व्यक्ति है या फिर कोई भी जीव जंतु रहते हैं, लिविंग क्रीचर्स, उनके लिए हम लोग क्या दिखाने वाले यहाँ पे? कंपैशन. फिर साइंटिफिक टेम्पर, कोई भी अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ह्यूमैनिज्म, दैट इज इंसानियत बोलते हैं उसको हम लोग, एंड द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब डोंट हैव दैट ब्लाइंड फेथ, और बदलते जाओ खुद को, रिफॉर्म करना. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस, वायलेंस को गिव अप करना है, हिंसा को, और जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है, चलो जो देश की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे? सेफगार्ड करेंगे. एंड टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी. इसकी वजह से फिर हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से हमारा जो देश है वो और ऊंचाइयों पर पहुंचता रहेगा, फिर और ज्यादा कामयाबी हासिल करता रहेगा, लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट. सो चिल्ड्रन, द लास्ट ड्यूटी दैट वी नीड टू परफॉर्म, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो गार्डियंस होते हैं, तो अपने बच्चों को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी देना, उनके वार्ड को 6 से लेकर 14 इयर्स तक प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारे पेरेंट्स और गार्डियन का ड्यूटी आता है. अच्छा, नाउ सम थिंग्स चिल्ड्रन दैट दे हैव मेंशन्ड हियर रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनोगे. सबसे पहली बात, ड्यूटीज की वजह से लोगों के बीच में क्या आता है? डिसिप्लिन.
तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों बनाया गया है? ताकि लोगों के, इंडियन सिटीजन्स के मन में थोड़ा सा क्या आ जाए यहाँ पे, वी अबाउट डिसिप्लिन। अच्छा, और क्योंकि इतने सारे डाइवर्सिटीज है तो बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाँ, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज दे ब्रिंग अबाउट, लोगों के बीच में डिसिप्लिन लाता है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल। अच्छा, अभी एक आध इंसान है, चलो उसको किस तरीके से बिहेव करना है, उसके लिए हम लोगों को जो गाइडलाइंस होते हैं, मतलब हाउ वी कैन हैव अ गुड कंडक्ट, कैसे अच्छे तरीके से हम लोग बिहेव कर सकते हैं सिटीजन्स। अच्छा, जनरल टर्म्स में ना। अच्छा, और एक बात, लोगों को एनलाइटन करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है, ध्यान रखना ये सिर्फ गाइडलाइंस होते हैं, उसको हम लोग एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे कि हर एक व्यक्ति को अपने खुद के फील्ड में हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। बट इफ सपोज इफ एनी पर्सन इज नॉट एबल टू हैव दैट एक्सेलेंस इन एनी पर्टिकुलर फील्ड, देन व्हाट हैपेंस, वी कैनॉट मेक अ फाइल अ केस अगेंस्ट हिम ना। बस एक आध व्यक्ति फेल हो रहा है, वो किसी अपने स्टडीज में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो। एंड इट एक्ट्स एज अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो जहां पे अब सबको पता है, जहां पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज भी आते हैं वहां पे। सो अधिकार और फिर हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनके बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। Then it develops a national spirit. In every case, children, we give more importance to the nation. And we always tell that your families, your societies, your state are lesser important than the nation. So whenever we require to defend our country, whenever we have to provide any kind of national service, then we will have that ability to sacrifice the smaller interest for something greater. That is, I think, among the younger generations, we need to have that spirit of what is called as the national spirit bolte usko. And then children, we also have what is called as the next point is talking about develops respect for freedom fighters, क्योंकि वहां पे लिखा गया था we are going to abide by the we will cherish the noble ideals that inspired our freedom fighters. अभी क्या जरूरत थी कि भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने अपना फैमिलीज वगैरह छोड़ के हमारे देश के लिए चलो अपनी जान दे दी। तो आपको नहीं लगता ये सब चीजें हम लोगों को भी चेरिश करनी पड़ेगी, उनके नोबल आइडियल्स को हम लोग भी फॉलो करेंगे। And very important, children, we have that national freedom for struggle for freedom. हाँ, तो a person should realize, children, कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया, वो सब लोगों को पता होना चाहिए। एंड देन वी हैव गॉट द पीस एंड सोशल ऑर्डर। तो अपने सोसाइटी में शांति बना के रखने के लिए, अच्छा, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ड्यूटीज की वजह से हम लोग हार्मनी, ब्रदरहुड, ये सब चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, बट दो वी हैव दिस ड्यूटी चिल्ड्रन, उसका इंपॉर्टेंस भी है लेकिन फिर उसके क्रिटिसिज्म्स भी है। एक, ड्यूटीज को एनफोर्स नहीं किया जाता। जैसे कि चिल्ड्रन, अभी हम लोग बोलते हैं कि जैसे हर एक को अपने फील्ड में एक्सेलेंटली अपना ड्यूटी परफॉर्म करना चाहिए, अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सवाल आता है कि उनके ऊपर केस किया जा सकता है क्या, उसको आप मतलब लॉफुली एक्शन ले सकते हो क्या? नहीं। हाँ, तो वी गॉट, मतलब हर एक व्यक्ति को एक इमेजिनेशन होना चाहिए ना, कमिटमेंट। अगर किसी के पास नहीं है डेडिकेशन, तो वी कैन नॉट पनिश दैट सिटीजन। मतलब ड्यूटीज अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो शायद हम लोग उसको पनिशमेंट ना दे पाए। एंड रिफ्लेक्ट्स टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। अच्छा, मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट्स होते हैं, जैसे कि वी गॉट रशिया, चाइना। हाँ, तो ध्यान रखने का कि वहां पे ये सब चीजों को वो लोग क्या एनफोर्स कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ पे नहीं। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज। अच्छा, फिर कुछ ड्यूटीज और कुछ एक्ट्स को यहाँ पे डुप्लीकेट किया गया। डुप्लीकेट मतलब देयर इज अ रेपिटेशन, मतलब डुप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि द बिहेवियर ऑफ द सिटीजंस इज गवर्न बाय द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री। तो सिविल लॉ होता है जो बताता है कि लाइक लोगों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और द फंडामेंटल ड्यूटीज दे बिकम रिडंडेंट, मतलब यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा कानून भी आता है उसके लिए। जैसे कि क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट आता है, देन वी गॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्टिंग वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। तो कुछ चीजें यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाती है ऐसे। Okay, so these were some of the important things related to the constitution, children. We have seen the fundamental duties of the Indian people. We also discussed the preamble to the constitution and every word, children, that was noted in the preamble. Now there are some
other important things, children, as I told you, we are going to talk about tolerance, then the communal harmony that we have, and then lastly, children will be also discussing what are the basic features of the Indian Constitution. So coming up with one more lecture tomorrow, children, जहाँ पे हम लोग ये topic complete कर देंगे. So that's all for today, children. Thank you very much. Bye, everyone. Take care. See you in the next lecture.